دوستوں پروپیسی اوڈیسی سیریز میں ایک خاص پہلو پریزنٹیشن میں خوش آمدید، اور میں آپ میں سے ہر ایک کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ ہم نے یہ پروگرام صرف 2 دن میں اکٹھا کیا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کوئی آئے گا نہیں، اور اس لیے آپ کے دلوں کو مبارک ہو کہ آپ اس خصوصی پروگرام کے لیے جلدی آ گئے، اور میں اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے آخری لمحات میں اس کو پر لائیو سٹریم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ انٹرنیٹ پر ہے تاکہ دوسرے اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ نیو یارک شہر سے پیشن گوئی کے مطالعے کا ایک خاص سلسلہ ہے جسے پرافسی آدسی کہتے ہیں، اور ہماری پہلی 7 پیشکشوں کے دوران میں نے اپنی ذاتی گواہی کے چند حوالہ جات بنائے، اور کچھ لوگوں نے کہا پادری ڈوگ ہم کچھ وقت کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے پاس تھوڑا سا اضافی وقت تھا، ہم نے عمارت کو آگے بڑھنے اور آپ کی گواہی دینے کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، اور اس طرح یہ سب اکٹھا ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب آپ اتنا وقت نکالتے ہیں اور آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ خدا کی تسبیح کرنے کے بجائے آپ اپنی تسبیح کر سکیں، اور آپ یقینی طور پر گناہ کی تسبیح نہیں کرنا چاہتے، اور ایک خطرہ ہے کہ آپ کبھی کبھی ایک ماہی گیر کی طرح جب بھی آپ کہانی سنائیں گے مچھلی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اب جانتے ہیں 8ویں جماعت میں لڑکی اسے ابراہم لنکن پر ایک کتابی رپورٹ کرنا تھی اور وہ ایک بڑا تاثر بنانا چاہتی تھی، چنانچہ جب وہ اپنی کلاس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا ابراہم لنکن بہت کم عمری میں 1 لاکھ کیبن میں پیدا ہوا تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ یہ زندگی سے بڑا ہو، اور میں ہمیشہ خادی کے کلام سے شروع کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ یہی ہے، اور اس لیے میں آپ کو بائبل کی ایک کہانی کی طرف ہدایت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو در حقیقت میتھیو، مارک اور لوکا کی اناجیل میں ملتا ہے۔ یہ ایک کہانی ہے جس کا عنوان میں نے ٹوٹی ہوئی زنجیریں رکھا ہے، اور اگر آپ مرکز کے 5ویں باب کو دیکھیں تو میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گا اور پھر میں جلدی سے لیوک کے پاس جاؤں گا۔ یسوع نے ابھی گلیل پر طوفان کے دوران سمندر کو پرسکون کیا ہے۔ اگلی صبح وہ کشتی کو چلاتا ہے اور شاگرد گلیل کے جنوب مشرقی کنارے کی طرف قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سمندر کے دوسری طرف گدرینیوں کے مک میں آئے، اور جب وہ کشتی سے باہر آیا تو فوراً قبروں سے باہر اس سے ملاقات ہوئی، ایک ناپاک روح والا آدمی جو قبروں کے درمیان رہتا تھا، اور کوئی بھی اسے زنجیروں سے نہیں باندھ سکتا تھا کیونکہ وہ اکثر بڑوہے اور زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، اور اس نے زنجیریں کھینچ لی تھیں اور بیڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دی تھیں، اور نہ کوئی اسے قابو کر سکتا تھا، اور ہمیشہ رات دن وہ پہاڑوں اور قبروں میں تھا، چیخ چیخ کر اپنے آپ کو پتھروں سے کاٹتا تھا۔ لیکن جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا تو دوڑ کر اسے سجدہ کیا۔ اب لوکا کے پاس جاؤ۔ ڈاکٹر لیوک اس کہانی میں چند چھوٹے پہلوؤں کا اضافہ کرتے ہیں جن کا مارک نے ذکر نہیں کیا۔ پھر وہ گدرینیوں کے مک کی طرف روانہ ہوئے جو گلیل کے سامنے ہے، اور جب وہ خشکی پر نکلا تو شہر کا ایک آدمی اس سے ملا جس میں بہت دنوں سے بدروہیں تھیں، اور نہ کپڑے پہنے تھے اور نہ گھر میں رہتے تھے لیکن قبروں میں، اور جب اس نے یسوع کو دیکھا تو چنلاؤ کر اس کے آگے گر پڑا اور اونچی آواز سے کہا، یہ عیسیٰ خدائے اعلیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ میں اب سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اذیت نہ دیں، کیونکہ اس نے یسوع نے ناپاک روح کو حکم دیا تھا کہ وہ آدمی میں سے نکل جائے، کیونکہ اس نے اسے اکثر پکڑ لیا تھا اور اسے زنجیروں اور بڑوہے سے جکڑا ہوا تھا، اور اس نے بندھنوں کو توڑ دیا اور بدرو اسے بیابان میں ہینکا۔ اور یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اور اس نے کہا، لشکر، کیونکہ بہت سے بدروہیں اس میں گھس گئی تھیں، اور انہوں نے اس سے منت کی کہ وہ انہیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ اب میں اس کہانی کا اشتراک کرتا ہوں کیونکہ میں کچھ طریقوں سے مجھے لگتا ہے کہ میں اس آدمی سے تعلق رکھ سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو ہر کوئی خوشی کی تلاش میں ہے، اور دنیا میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی شہرت اور قسمت سے ملتی ہے، اور حقیقت میں اگر ہم رب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو ہم شیطان کے پابند ہیں۔ یہ آدمی جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے ہیں وہ بائبل میں سب سے زیادہ کھویا ہوا شخص ہے۔ آپ کو بائبل میں کسی کی مثال نہیں مل سکتی جس کی حالت اس آدمی سے زیادہ نا امید ہو۔ ذرا یہ دیکھو، وہ ننگا پہاڑوں میں دوڑ رہا ہے، مردوں کے ساتھ جی رہا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں یہ کہتا ہے خنزیروں سے گھرا ہوا ہے، اسے کاٹنے کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ نے پہلے اس کے بارے میں سنا ہے؟
अपने आप को पत्थरों से काटता, हर वक्त रोता रहता, टूटी हुई दांतों और जंजीरों के टुकड़ों को अपनी कलाइयों और टखनों और गर्दन के गिर्द घसीटता, दार खून। वैसे अगर आप यहूदी हैं और ये कहानी पढ़ते हैं तो खिंजीर नापाक हैं, खून नापाक है, कब्रें और मौत नापाक हैं। ये कहानी किसी भी यहूदी कारी को कह रही है। नापाक 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 न सिर्फ शैतान शयातीन के लश्कर से भरा हुआ है। क्या आप बाइबल में किसी को तलाश कर सकते हैं जिसकी हालत ज्यादा नाउमीद नजर आती है? लेकिन ये आदमी यसू के पास आया और इसने सब कुछ बदल दिया। आप जानते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस कहानी से जड़ सकता हूं क्योंकि मैं पहाड़ों में नंगे होकर भाग रहा था, जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। और ये इस तरह से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इसमें इजाफा हुआ। आप जानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शैतान हमारी जिंदगियों में आ सकता है जब तक कि हम इसे इजाजत ना दें, जब तक कि हमें ऐसा महसूस ना हो कि हमारी सारी जिंदगी दुश्मन के कंट्रोल में है। और आप हैरान हैं, क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अब आइए बुनियादी बातों पर वापस जाएं। हर कोई खुशी चाहता है। यसू चाहता है कि आपको एक भरपूर जिंदगी मिले। लेकिन मसला ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी गलत चीजों से आती है। वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं खुश होता। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा मजीद मदद करेगा, ठीक है, अगर मैं बेहतर नजर आता, ज्यादा मकबूल, ज्यादा बासलाहियत होता तो मुझे खुशी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच नहीं है। मेरे कुछ बहुत ही गैर मामूली वालिदैन थे। मुझे इसका एहसास नहीं था जब तक कि मैं दुनिया में इस तरह से बाहर नहीं निकला था कि ये कितना गैर मामूली था। लेकिन ये मेरी माँ और मेरे वालिद जॉर्ज और रोथ बैचलर की तस्वीर है। उनकी शादी ज्यादा अरसा नहीं हुई थी, 6 साल। इस दौरान उनके 2 बेटे हुए, मेरा भाई और मैं। मेरा भाई, इसका नाम फाल्कन है, मेरा नाम डगलस है। मेरे वालिद हुआ बाजी के कारोबार में थे और वो बहुत कामयाब थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान वो पायलट थे। इसने डी-डे के दौरान परवाज की। वो जंग से पहले एक पायलट था, लिहाजा जब वो एयर कोर में दाखिल हुआ तो वो एक अफसर था और वो सजा हुआ था। जंग के बाद इसने खरीद और फरोख्त शुरू कर दी। आप जानते हैं, जंग के बाद तैयारों का एक बहुत बड़ा फाजिल है। इसने हवाई जहाज खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, यहां तक कि इसके पास 2 एयरलाइंस में दिलचस्पी पर काबू पा लिया। वो दोस्त था, मुझे वाकई कहना चाहिए, हावर्ड हीव्स और कुछ दूसरे करोड़पतियों के हरीफ। वो बहुत अमीर था, बहुत कामयाब था, बहुत पैसा था। वो एक वर्काहुलुक था। यहां बहुत से तराशों में से चंद एक हैं जो मैं दिखा सकता हूं। जॉर्ज बैचलर, बैन अल अक़वामी हवाई लीज। वो न सिर्फ बीच एयर के मालिक थे बल्कि वो एयर लाइंस, एरो एयरवेज, कैपिटल एयरलाइंस की मुरम्मत करते थे, सूद को कंट्रोल करते थे। किसी को वेस्टर्न एयरलाइंस याद है? इनमें से कुछ को जम करके दोबारा खरीद लिया गया और मियामी बीच के एक जजीरे पर रहते थे। ये रहा नया मियामी। जॉर्ज बैचलर मियामी के मिस्टर एविएशन। इसके पास करोड़पतियों के सारे खिलौने थे। ये इसकी कुश्ती है। ये सिर्फ एक आर्ट की तस्वीर नहीं है, ये इसकी आर्ट है। वैसे इसे बैचलर पार्टी कहा जाता था। ये अंदर की बात है। मैं इस पर कई बार रहा हूं। एक दिन प्लग टूट गया। वो बंदरगाह से बाहर निकले और कुश्ती डूब चुकी थी। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? अरबों डॉलर की सरमाया कारी गिर गई। लेकिन मेरे वालिद, वो एक लिहाज से एक सनसनीखेज जिंकी थे। वो डरता नहीं था। आप जानते हैं, एक पायलट, और वो वाटर स्की करता था। जब मैं बड़ा हुआ तो घर के पिछवाड़े में हमारे पास 3 कश्तियां थीं। मेरे वालिद के पास मछली पकड़ने की एक बड़ी कुश्ती थी। हमारे पास सकी कुश्ती थी। मेरे पास एक बागबानी कुश्ती थी। ये मियामी बीच के पिछवाड़े में था। वो एक खास जजीरे पर रहता था। मेरे वालिद ने कारें दौड़ाएं। ये मेरे वालिद हैं, उनकी रेस कारों में से एक, और इसे एडवेंचर का शौक था। आपके ख्याल में खुशी लाने वाले तमाम खिलौने थे। हमारे गैराज में किसी न किसी मौके पर जैगवार, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज, फरारी, रोल्स रॉस। यकीनन हम खुश हुए होंगे। नहीं, ये मेरे वालिद हैं जिनकी बीवी 5 में से तीसरे नंबर पर है। वो बहुत अच्छी खातून थी। वो मिस कैंटकी थी। और जब इसने इसे तलाक दी तो अपने शायद डोनाल्ड ट्रंप नाम के किसी के बारे में सुना होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया इवाना ने उन्हें तलाक दी तो इसे $14 मिलियन की कम तस्फिया मिली, क्योंकि इसने कब्ल अज शादी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। जब बेटी ने वालिद को तलाक दी तो ये फ्लोरिडा की तारीख में सबसे बड़ी तलाक का तस्फिया था। मेरे वालिद के पास बहुत पैसा था।
यहाँ मियामी हेराल्ड का कारोबार है। ये 1992 है। आप इसे नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं आपको पढ़ दूंगा। मैं इसे यहां से देख सकता हूं। 71 में हुआ बाजी के अलंबरदार जॉर्ज बैचलर नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। वो मियामी का सबसे कामयाब कारोबार चलाता है, पायलट जेट, रेस कारें, वाटर स्की, और जल्द ही 29 साल की दुल्हन लेने वाला है। वो 71 बरस के थे। मेरी नई सास मेरी बीवी से छूटी थी, लेकिन ये इससे बेहतर हो जाता है। अब मैंने इसे दोबारा देखा। औरतें जाने वाली हैं। अब ये कैसे काम हुआ? मेरे अबू की सास मुझसे छूटी थी। इसकी एक भाभी थी जिसकी उम्र 11 साल थी। पेचीदा खानदान। दोस्तों, हम इस दौरान बैचलर फैमिली में एक रियलिटी शो कर सकते थे। यहां इसी रिसाले का तसलसल है। 71 में बैचलर 16 पर जा रहा है और उसके पीछे एरो एयरलाइंस का एक तैयारा है। लेकिन अब जानते हैं, हर एक को परेशानी है। मेरे वालिद की पहली बीवी और बेटा, इसका नाम पैट्रिक था, हवाई जहाज के हादसे में मर गए और ये इसके तैयारों में से एक था। पायलट ने पहाड़ पर उड़ान भरी और अब में से कुछ को याद होगा कि गैंडर, न्यूफिनलैंड में नए साल की शाम मैरीन से भरा हुआ एक तैयारा घर जा रहा था। इसने टेक ऑफ किया और उसने DC-8 को उड़ा दिया और सब हैरान थे कि क्या ये प्रॉपर डांसेस है। बरसों बाद उन्होंने अपनी तहकीकात बंद कर दें इसे उड़ा दिया गया, लेकिन अपने इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सुना। उन्होंने मिस्र में तैयारे पर बम रख दिया। ये आखिरकार टेक ऑफ पर ही फट गया। जिंदगी में बहुत सारे सानिहात। मेरे भाई आल्कन को सिस्टिक फाइब्रोसिस था, फेफड़ों की टर्मिनल बीमारी के साथ पैदा हुआ और इस तरह अब सोचते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सबको मसाइल हैं और मेरे वालिद के सिर्फ 2 बेटे थे, छोटे खून वाले बेटे। मेरा एक सौतेला भाई था जो बच गया और ये मैं और मेरा भाई था। इसके बाद फाल्कन का इंतकाल हो गया है। अब जानते हैं, फाल्कन और मैं ये बहुत मुख्तलिफ था क्योंकि हम एक ही कद, एक ही वजन है। इसकी भूरी आंखें थीं, मेरी आंखें नीली हैं। इसके झुर्रियां थीं, मैंने नहीं किया। इसके भड़कते सुर्ख बाल थे, मेरे बाल नहीं थे। हमारा नाम हवाई जहाजों के नाम पर रखा गया था। इसका नाम फाल्कन था। वो बहुत छेड़ गया क्योंकि अब का नाम फाल्कन बैचलर है। मेरा नाम कम अज कम DC क्राफ्ट डगलस मैकडोनल्ड के नाम पर रखा गया था। तो अब जानते हैं, अब इसे वालमार्ट में कलीदी जंजीर पर तलाश कर सकते हैं। ये इतना बुरा नहीं है। ये मेरे वालिद हैं जिनकी बीवी नंबर 4 है, जो मेरी बीवी से छूटी थी, और कैरन ने यह तस्वीर इस तरह ली। मेरा भाई, इसकी बीवी सैंडी। यहां मेरे वालिद पोप जॉन पॉल II के साथ हैं और अब सोचते हैं वो अब पोप से कैसे मिलते हैं। अगर आप $2 मिलियन का अतिया देते हैं तो कोई भी पोप से मिल सकता है। ये इतना मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आपको याद है कि 2000 में पोप की जुबली थी और मेरे वालिद ने हर एक को उड़ने के लिए $2 मिलियन मालियत के जेट तैयारे अतिया किए और वो पोप से मिल गए। और वो फिर बीवी नंबर 4 जो इतालवी थी और इटालियन बोलती थी। लेकिन तुम जानते हो क्या, वो सारी रकम मेरे वालिद को हर रात सोने के लिए खुद पीना पड़ता था। अपने तकिए के नीचे बंदूक रखकर सोते थे क्योंकि उनके बहुत से दुश्मन थे। मेरी बीवी कैरन एक फिजिकल थेरापिस्ट है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने इसका जिक्र किया है। इसे बहुत ज्यादा तनाव था। वो इसकी गर्दन में गिरहें खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि यसू ने क्या कहा? आदमी को क्या फायदा अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान खो दे? अगर आपके पास ये सब चीजें हों तो आदमी को क्या फायदा है? इंसान की जिंदगी उन चीजों की कसरत पर मुश्तमिल नहीं है जो उसके पास है, क्योंकि बाइबल कहती है कि चूर, स्टील, कीड़ा और जंग को खराब कर देते हैं। अगर आपके पास खजाना है तो आप अपना खजाना कहां रखना चाहते हैं? जन्नत में दोस्तों, बस यही बात रहती है। तो मैंने बड़े होते देखा, मेरे बहुत से दोस्त, उनके पास बहुत पैसा था। मेरे बहुत से दोस्तों और उनके खानदानों के पास बहुत पैसा था, लेकिन खुशी नहीं थी। अब दूसरी तरफ मेरी माँ, मेरे वालिद ने बपतिस्मा देने वाले की परवरिश की थी, लेकिन दूसरी जंग अजीम के वक्त तक इसने इतनी मौत और तबाही देखी। इसने सोचा, अगर कोई प्यार करने वाला खुदा है तो ऐसा क्यों होगा? वो काफी हद तक उग्नोस्टिक का मुल्हिद हो गया। अगरचे इसने एक बार गिडॉन बाइबल चोरी की थी, इसने मुझे एक बहरान के दौरान बताया और वो कुछ जवाबात तलाश करने की कोशिश कर रहा था। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? करोड़पति वो होटल के एक कमरे से बाइबल चरा लेता है। मेरी माँ वो यहूदी थी, रोथ बैचलर, और वो मेरा भाई और मैं
کیا میں بچپن میں پیارا نہیں تھا؟ اور اس نے ایلوس پریسلی کے لیے گانے لکھے۔ وہ فلمی نقاد تھیں، وہ ایک اداکارہ تھیں۔ میری والدہ بہت باصلاحیت تھیں۔ اس نے ہائی اسکول چھوڑ دیا لیکن اس کے پاس موسیقی کا تحفہ تھا اور اس نے خود کو گانے لکھنا اور گٹار بجانا سکھایا، اور وہ صحیح لوگوں کو جانتی تھی، اور وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ نیو یارک شہر میں پلا بڑھا۔ میرا خاندان، دادا، وہ سب نیو یارک شہر میں رہتے تھے۔ وہ کیلیفورنیا چلی گئی جہاں اس کی ملاقات میرے والد سے ہوئی، جنہوں نے بربینک میں اپنا کاروبار شروع کیا، اور وہ فلمی نقاد کے طور پر شو بزنس میں اپنا راستہ بنا رہی تھی۔ میری والدہ نیو یارک شہر میں خواتین کی آزادی کی تحریک میں رہنما تھیں۔ یہ اس کا مارچنگ ہے، اور اس نے درحقیقت خواتین کی لب پر گانوں کا ایک سلسلہ لکھا ہے۔ اس نے علم نجوم پر گانے لکھے۔ ہالی ووڈ میں ہمارے تمام دوست جادو اور جادو میں تھے، اور کیا کسی کو ڈارک شیڈوز نامی ٹی وی پروگرام یاد ہے؟ وہ تمام لوگ ہمارے خاندان کے دوست تھے۔ وہ ہمارے گھر پر ہیں اور ہم 81 اسٹریٹ پر رہتے تھے۔ اب میں سے کچھ کو لائٹ برجز یاد ہیں جن کا ڈائیونگ شو تھا۔ وہ ہم سے اوپر رہتا تھا۔ اس کے بیٹے بو برجز، جیف برجز، ہم انہیں ایسے ہی دیکھتے تھے جب ہم بچے تھے، اور ریڈ بٹنز اکیڈمی ایوارڈ یافتہ ہمارے خاندان کے اچھے دوست کونے پر رہتے تھے، اور اس کی بیوی ایلیسیا اور اس کی بیٹی ایمی ہم جانتے تھے۔ میرا مطلب ہے، لہٰذا ہم ان بہت سے لوگوں کو جانتے ہوئے بڑے ہوئے جو شو کے کاروبار میں تھے، کیونکہ میری والدہ نہ صرف ایک نغمہ نگار، ایک اداکارہ، ایک فلمی نقاد تھیں، بلکہ وہ ایک ڈرامہ نگار بھی تھیں جن کے براڈوے سے باہر کچھ پروگرام تھے۔ اس نے ایل اے فلم کرٹکس کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک بہت ہی طاقتور مقام ہے، کیونکہ جب ایک فلمی نقاد پروڈیوسرز ایک فلم میں لاکھوں لگاتے ہیں تو وہ پہلے جائزے لاکھوں ڈالر میں فرق کر سکتے ہیں، اور اگر ناقدین کہتے ہیں میں اپنا پیسہ ضائع نہیں کروں گی، وہ لاکھوں کھوتے ہیں۔ لہٰذا وہ ہمیشہ اسے تحائف اور انعامات اور مفت کروز اور ریستورا کے ٹکٹ اور ایل اے فلم ناقدین کے صدر کے طور پر ایک بہت ہی طاقتور پوزیشن بھیج رہے تھے۔ اس نے رونا بیریٹ کی جگہ لے لی، اگر آپ کو کبھی وہ نام یاد ہو۔ گڈ مارننگ امریکہ پر وہ ہالی ووڈ کی رپورٹس کرتی تھیں۔ اسے روتھ بیچلر کا ہالی ووڈ کہا جاتا تھا، اور وہ ایک اداکارہ تھی، لیکن عام طور پر وہ بڑی فلموں میں چھوٹے حصے ہوتے تھے۔ وہ دا 10 کمینڈمنٹس میں تھی، اور وہ ول برنر اور چارلٹن ہیسٹن کے ساتھ ایک اور فلم دا بکنیر میں تھی، لیکن ان کی اصل کامیابی بطور فلمی نقاد تھی۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ یہ کہانیاں سناتے ہیں، اب صرف چیزیں بنا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنی ماں کی کچھ تصاویر دکھانے جا رہا ہوں جن کو وہ جانتی تھیں۔ کوئی پال میک کارٹنی کو جانتا ہے؟ سر پال میک کارٹنی، سلویسٹر اسٹالون۔ میرے پاس بہت سی دوسری تصویریں ہیں، لیکن وہ مر چکی ہیں اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو، لہٰذا میں یہ نوجوانوں کے پروگرام کرتا ہوں، اور بچوں کو نہیں معلوم کہ فرینک سنترا کون ہے، تو میں ان کو دکھاتا ہوں جو ابھی تک زندہ ہے۔ یہ نٹلی ووڈ ہے، وہ تب سے انتقال کر چکی ہے۔ راجر مور جیمس بانڈ میں سے ایک تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ماں ہے۔ سیلی فیلڈ، کلنٹ ایسٹ ووڈ، ڈسٹن ہوفمین، پال نیومین، محمد علی۔ لہٰذا ہالی ووڈ میں لوگ میری والدہ کو جانتے تھے، اور ہم ان میں سے بہت سے لوگوں کو جانتے تھے۔ کبھی کبھی کیرن اور میں ٹیلی ویژن پر کچھ دیکھ رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا میں انہیں جانتا ہوں، اور میں بتانا شروع کروں گا۔ وہ کہے گی تم میرے لیے اسے برباد کر رہے ہو، اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ لیکن تم جانتے ہو کیا؟ ہمارے دوست تھے جو امیر اور مشہور اور صحت مند اور خوبصورت تھے، اور انہوں نے خود کو مار ڈالا۔ میرا ایک دوست تھا جو ایک مشہور چائلڈ ایکٹر تھا۔ اس نے خود کو ویسٹ ہیمپٹن میں گیراج میں بند کر لیا، کار آن کر لی اور خود کو ہلاک کر لیا۔ پیسہ تھا، ہنر تھا، خوبصورتی تھی، خالی زندگی کا کوئی مقصد نہیں دیکھا، اور اس لیے میں نے دیکھا کہ پیسہ نہیں آتا ہے، خوشی شہرت سے نہیں آتی۔ ان میں سے بہت سے لوگ وہ خوش نہیں تھے۔ ہالی ووڈ میں بہت ساری منشیات، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، آپ حیران ہیں کیوں؟ ان میں سے بہت سے وہ شادی کر رہے ہیں اور طلاق دے رہے ہیں، وہ ناخوش ہیں۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا، حالانکہ سب اسے جانتے تھے، وہاں صرف کیرن اور میں، میرے دادا دادی۔ انسان کی زندگی ان چیزوں کی کثرت سے نہیں آتی جو اس کے پاس ہے۔ اگر مشہور ہونا ہے تو خدا کے سامنے مشہور ہو جاؤ۔ یہ وہ نہیں ہے جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ وہی ہے جو خدا آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، میں نیو یارک شہر میں پلا بڑا ہوں۔ یہاں ایک پرانا شاٹ ہے جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر ابھی تک موجود تھا، اور میں بربینک، کیلیفورنیا میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، حالانکہ میں نیو یارک شہر میں پلا بڑا ہوں۔ جب میں 3 سال کا تھا تو ماں اور والد کی طلاق ہو گئی، اور ماں نے 4 بار شادی کی تھی۔ والد صاحب کی 5 شادیاں ہوئیں۔ خاندان میں بہت سازشیں تھیں۔ ماں کا ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ 20 سال تک افیئر تھا، اور مجھے ایسا برتاؤ کرنا پڑا کہ جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو، آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن میں اور میرے بھائی نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ جب ہم نیو یارک سٹی میں بچے تھے تو ماں کہتی تھی سڑکوں پر کھیلو،
और मैं और मेरा भाई 7-8-9 साल हम सब वे पर सवार हुए। फिर सब बच्चे हम बस में सवार हुए। कभी कभी हम अदा करते हम बस में सवार हो जाएंगे, कभी कभी हम पीठ पर कूद पड़ते। आप में से किसी को वो याद है? पीछे हटी और खिड़की के किनारे को पकड़ी। मुझे उम्मीद है कि आप गिरे नहीं होंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं? और सड़कों पर गैंग थे और हम 40 सेकंड और ब्रॉडवे पर खेलने जाते, और इस वक्त ये काफी बीज दार था। आप में से किसी को पेनी आर्किड्स याद है? तुम वहां जाओ और उसकी बाल खेलो। और इस तरह मेरी माँ ने हमें अभी सड़कों पर भेजा और हमने बहुत कम उम्र में सीखा है। लेकिन मेरे वालिदैन के पास पैसा था, माँ के पास इतना नहीं जितना वालिद साहिब। लेकिन चूंकि वो चले गए और थोड़ी देर के लिए वालिद साहिब की तहवील में थी, फिर माँ की तहवील में थी, फिर उन्होंने हमें अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए भेजा, फिर उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मैं 9वीं जमात तक 14 मुख्तलिफ स्कूलों में गया। पहला मिलिट्री स्कूल ब्लैक फॉक्स मिलिट्री एकेडमी। मेरी उम्र 5 साल थी, और चूंकि मेरे वालिदैन बहुत हौसला अफजाई करते थे, वो हमें समर कैंप भेजते थे। वो हमें रास्ते से हटाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, और इस तरह हमें रवाना कर दिया गया। और यहाँ मेरा भाई और मैं समर कैंप में हैं, और मैं वहाँ न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में हूँ। आप में से कुछ ने इसके बारे में सुना है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप वहीं गए थे। ये कोई सियासी बयान नहीं था। कैरन ने कहा, ऐसा मत कहो, सिर्फ एक हकीकत है। और वो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम बॉबी बूर है। मैं 50 साल बाद इससे दोबारा जवा हूं। इसने मेरे टीवी प्रोग्राम देखे, और अब जानते हैं इसने हमारे हैरत अंगेज हकायक के दफ्तर को फोन किया। वो कहता है, क्या डोग वहां है? इसे बताएं कि बॉबी की काल है। और मैं ना सिर्फ फौजी स्कूलों में गया, फिर मैं गर्मियों में मुश्किल मैं पड़ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे हुआ। एक दिन मेरी मामा और बाप दोनों सिगरेट पीते और पीते थे, और मां ने दूसरी चीजें इस्तेमाल की। हॉलीवुड में बहुत से लोग मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं, और एक दिन इसने कहा, इसने अपना जोड़ मोड़ दिया और उसने कहा, डोग मैं जानता हूं कि तुम उसके लिए बाहर सड़क पर भागोगे। यकीनन मेरे पास पहले से ही था। इसने कहा, मैं समझती हूं कि तुमने ये घर पर किया है। तो वो मेरे साथ सिगरेट नोशी करने लगी, और ये एक बाकायदा चीज बन गई कि अब जानते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार रात को वो मुझे स्कूल से पहले ऐसा करने देना चाहती थी। हम बर्तन धोएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। ये हमारे बंधन का वक्त था। ठीक है, इस वक्त मेरे भाई को फेफड़ों की बीमारी की वजह से मेरे वालिद के साथ रहने के लिए भेजा गया था। न्यूयॉर्क की आबोहवा सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए अच्छी नहीं थी। और फिर फाल्कन मिलने आएगा और वो माँ और मैं सिगरेट पीते हुए देखेगा। और मैं कहा, यह ठीक नहीं है, मैं बर्तन सिगरेट नहीं पी सकता। और उसने कहा, मैं आपको चर्च की कुछ कुकीज बनाने जा रही हूं। इसलिए मेरी वालिदा मेरे भाई के लिए चर्च की हशीश कुकीज बनाएंगी। और हमने एक दिन कुछ को स्कूल लेकर असातिज़ा को दिया और कहा, आपको ये पसंद आएगा। मेरी माँ के पास एक खास नुस्खा है, वो वाकई अच्छी है, ताकि असातिज़ा को थोड़ा सा ढील दिया जाए। तो मैं एक हकीकी मुसीबत में था। मैं बहुत मुसीबत में फंस गया। और अब जानते हैं, मैं खुदकुशी के बारे में सोचता था, क्योंकि इन तमाम स्कूलों में जाने के बावजूद मैं यहूदी स्कूलों में जाता था। जब मैं यहाँ था, माँ ने मुझे यहूदी स्कूलों में भेजा ताकि मेरे वालिद को दीवाना बनाया जाए, और फिर मैं वालिद के साथ रहूंगा। वो मुझे कैथोलिक स्कूल भेजेंगे। और वो कैथोलिक नहीं था, लेकिन मैं वाकई में खुदा के बारे में कभी नहीं जानता था। मैंने सोचा, तुम मर जाओ, तुम खाद में बदल जाओ। और मैं हर वक्त खुदकुशी के बारे में सोचता रहता था। मैंने सोचा, पैसा खुशी नहीं लाता, ज्यादातर लोग नाखुश हैं। मेरे दोस्त थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली। अब क्यों ना ये सब खत्म हो जाए। मैंने महसूस किया कि मेरे वालिदैन वाकई मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो मुझे दूर भेजते रहे। और इसलिए मैं हमेशा ये तसव्वुर कर रहा था कि अपने आप को मारने का बेहतरीन तरीका क्या होगा। और यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हुए अब जानते हैं, वहाँ कुछ ऊंची इमारतें हैं। मैं छत पर चढ़ूंगा, वो छत को खुला छोड़ देंगी। मैं छत पर चढ़ूंगा और मैं अपनी उंगलियों को किनारे पर रखूंगा, और मैं देखूंगा कि जब तक मैं अपने मरकज सिकल को महसूस न करूं, मैं कितना दूर झक सकता हूं। और मैंने ना छलांग लगाने की वजह यह है कि मुझे एक बार एक आदमी के बारे में पढ़ना याद है जिसने 9 कहानियां छलांग लगाई थी, लेकिन वो कुछ दरख्तों से टकराया और कुछ कारों पर जा गिरा, और वो जिंदा रहा, लेकिन वो मफलूज हो गया। मैंने सोचा, ठीक है, ये और भी बुरा है। मैंने सोचा कि मैं छलांग लगा सकता हूं, और अगर मैं ना मरूं तो क्या होगा। और इसलिए मुझे डर था कि ये काम नहीं करेगा। मैं एक और बार जानता हूं, मेरी माँ ने नींद की गोलियां खाईं, और वो एक रात बाहर थी। मैं अकेला हूं। मैं हर वक्त परेशानी में रहता हूं। मैं नाखुश हूं। मैं हमेशा बुरा ग्रेड हूं। और मैं अपनी माँ के बाथरूम मैं इसकी दवाइयों की काबीना में चला गया। मुझे गोलियों की एक बोतल मिली जिसमें कहा गया था कि एक सोते वक्त ले लो विलियम। और मैंने कहा, मैं सिर्फ सोना चाहता हूं और कभी नहीं जागूंगा। आपने कभी ऐसा महसूस किया? और इस तरह मैंने अपने हाथ गोलियों से भर लिए और मैं तैयार हो रहा था। मुझे पानी मिला। मैं इन तमाम गोलियों को निगलने के लिए तैयार हो रहा हूं, और बस सो जाओ और ये सब खत्म कर दो।
लेकिन फिर ये मेरे जहन में आया, इसने बोतल पर नींद की गोलियां नहीं कही थीं। इसने कहा सोने के वक्त एक ले लो, विलियम। और मैं इस वक्त 13 साल का था। मुझे यकीन नहीं था कि विलियम क्या है। मैंने सोचा अगर विलियम ख्वातीन के लिए एक गोली की तरह हो तो क्या होगा, और मैंने सोचा फिर मेरा क्या हो सकता है। मैंने इसमें से बहुत कुछ लिया और इसलिए मैंने सोचा बेहतर है कि मैं ऐसा ना करूं, और इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। फिर मैंने बियर का कमर्शियल देखा। मुझे नहीं मालूम कि आप में से किसी को पुराना शल्स बियर कमर्शियल याद है। इसने कहा अब जिंदगी में सिर्फ एक बार घूमते हैं, तमाम जोश और खरूश हासिल करें। और मैंने सोचा ठीक है, ये मेरा नया नारा है। अगर मैं मरने वाला हूं तो इमारत से छलांग लगाकर गोलियां खाकर क्यों मरूं। मेरे पास बस है, मैं इतनी ही दिलचस्प जिंदगी गुजारने जा रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं, और एक धमाके के साथ बाहर जाऊंगा। और मैं बहुत मुश्किल में पड़ने लगा। ये सिर्फ सिगरेट नोशी का बर्तन आमा के साथ है। शराब पीना नहीं था, मैं घर में पी सकता था। जब मैं अपने वालिद के साथ जजीरे पर उनकी हवेली में रहता था। वैसे ये सुनसीट आइलैंड नंबर 1 की तस्वीर है। मैंने अभी इसे गूगल अर्थ से हटा दिया है। अब्बा का घर पानी के ऊपर था। 3 कश्तियां थीं जजीरे पर जाने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड, और उसके घर में एक बार था। मैं जो चाहूं पी सकता हूं, और मैं यहां सिर्फ उन तमाम अद्वियात का जिक्र करूंगा जो मैंने इस्तेमाल की हैं, और मैंने हर चीज का इस्तेमाल किया है। मेरे ज्यादा दोस्त किसी भी चीज से ज्यादा अल्कोहल से मेरे हैं। मैं ये कहता हूं क्योंकि मैं कुछ ईसाइयों से मिलता हूं जो सोचते हैं कि थोड़ी सी शराब ठीक है। शराब पीने वाले 7 अफराद में से एक शराबी हो जाता है। क्या आप ऐसा कुत्ता रखेंगे जो आपके घर आने वाले 7 अफराद में से एक को काट ले? ईसाइयों को नहीं पीना चाहिए। अगर और कुछ नहीं तो उसकी वजह यह है कि यह दूसरे लोगों के लिए बुरा गवाह है। तो मैं पीऊंगा। और बात यह थी कि हमारे घर में एक बटलर और एक नौकरानी थी, और इसलिए मैं दिन में शराब पीता था जब वालिद मेरे दोस्तों के साथ काम पर होते थे। बटलर बाहर सह में काम कर रहा होगा, और बटलर अंदर आकर कहेगा वो लगता है मिस्टर बैचलर का स्टॉक कम है, वो इसे बहाल कर देगा। मेरे वालिद को कभी मालूम नहीं था कि यह गायब है। तो हमने बहुत पिया, और जब मैं मां के साथ था मुझे मालूम था कि इसने अपना बर्तन कहां रखा है। इसने इसे मसाले के रैक में रखा, और इस तरह मैं न सिर्फ उसके साथ सिगरेट नोशी करता था बल्कि कुछ इजाफी भी लेता था। और यूं मैंने मुनशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं घरों में घुसकर चोरी करने लगा। और जब मैं सुनसी जजायर पर अपने वालिद के साथ रह रहा था, मेरे दोस्त अपने कभी फायर स्टोन टायर के बारे में सुना है? मैं एमी फायर स्टोन को डेट करता था। अपने कभी हुवर वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में सुना है? सैंडी हुवर। हम उसके साथ खेलते थे। वो जजीरे पर रहता था, और मैं इन मुख्तलिफ लोगों के नाम लेना शुरू कर सकता हूं, करोड़पति। और वो हमारे दोस्त थे, और हम सब मिलकर मुश्किल में पड़ गए। हम बूढ़ हो जाएंगे, ये सब अमीर बिगड़े हुए बच्चे, और तुम क्या करना चाहते हो? और अगर ये मुनशियात LSD या शराब नोशी या कुछ और नहीं था तो हम कहेंगे आइए सिर्फ जोश के लिए घर में घुस जाएं। और हम दूसरे करोड़पतियों के घरों में घुसने लगे। वो मुझे कुछ करने की हिम्मत करेंगे, मैं सिर्फ तवज्जो के लिए कुछ भी करूंगा। और अफसोसनाक बात यह थी कि जजीरे पर चोरी का एक बेड़ा था, और यूं करोड़पति पुलिस को बुला रहे थे। उन्होंने समझा कि ये चोर कुश्ती से आ रहे हैं, और हम पुलिस की कश्तियां चोरों को पकड़ने के लिए जजीरे के गिर्द चक्कर लगाते देखते थे। ये जजीरे पर करोड़पतियों के बच्चे थे जो एक दूसरे से चोरी कर रहे थे, और इस दौरान न कोई इत्मीनान न खुशी। मैं अभी ज्यादा से ज्यादा परेशानी में पड़ने लगा। मेरी मां ने कहा जॉर्ज डॉग को मजीद आजादी की जरूरत है। मिलिट्री स्कूल में बहुत पाबंदियां लगाई गई हैं, इसे अपने आप को जाहिर करने की जरूरत है। मेरी वालिदा एक फनकार थीं, अब जानते हैं। इसे न्यूयॉर्क के ऊपरी इलाके मैन में एक स्कूल मिला जहां कोई उसूल नहीं था। इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। ये सिर्फ इन तस्वीरों में से एक है जो मेरे पास है। मैं सबसे नीचे वाला हूं जिसकी टांगें करास और लंबे बाल हैं। मैं जानता हूं कि ये एक कीचड़ वाली तस्वीर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही ऑफलाइन हासिल कर सकता हूं। इसे कहा जाता था ये एक तजर्बाती स्कूल था। ये 5 साल तक जारी रहा। तजर्बा नाकाम हो गया। ख्याल यह था कि बच्चों को कुछ ना करने दें, उन्हें आजाद रहने दो। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको खाने पर जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल में वाकई सिर्फ 3 उसूल थे। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई मुनशियात नहीं थी, कोई जिनसी ताल्लुकात नहीं थे। क्या आपको लगता है कि बच्चों ने 3 उसूलों को सुना? हर उम्र के लिए क्वाड डारम्स थे। हमारे 8 से 18 तक के बच्चे थे। ये पागल था। मैं हैरान हूं कि यह कानूनी था, लेकिन मैं इस मुफ्त स्कूल में गया। अगर आपको लगता है कि दोस्तों में मजाक कर रहा हूं तो आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो मिक्स अप के बारे में बात करें। मैं शुमाली अमेरिका के सख्त तरीन स्कूल न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी से गया, जो हर
चीज के लिए एक उसूल है। और मैं खुदा की तारीफ करता हूं कि मैं इस स्कूल में गया था, क्योंकि अब कैरन से पूछ सकते हैं मैं अपने अंडरवियर को अभी भी फोल्ड करता हूं, वो इसे भी जोड़ देती है। लेकिन मैं होटल के कमरे में बिस्तर बनाता हूं। हम होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं, मैं बिस्तर बनाता हूं और फिर मैं एक स्कूल गया, कोई उसूल नहीं। और बहुत से बच्चों ने खुदकुशी की कोशिश की। मैंने सीखा है कि आपको अपनी जिंदगी में नज्म और ज़ब्त रखना होगा, वरना आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपके पास खुद पर काबू नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया। जब मैं पहली बार घर से भागा तो मेरी उम्र 16 साल थी, नहीं 13 साल की उम्र। मैंने अपनी मां से चोरी की। न्यूयॉर्क के ऊपर जाने के लिए बसली एक खेमे में बैठ गया और मैं खुद हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्या करूं? मैं तन्हा हो गया। मैं बिल आखिर घर आ गया। जब मैं 14 साल का था तो एक दोस्त के साथ दोबारा भाग गया। वैसे मेरी इस दोस्त से बरसों बाद मुलाकात हुई। वो फौज में कर्नल बन गया। ये वाकई दिलचस्प था। और वो और मैं भाग गए ट्रेन में पेंसिल्वानिया में गिरफ्तार हो गए। हमें न्यूयॉर्क वापस आया। हम फिर फरार हुए, पहाड़ों पर चले गए, दोबारा गिरफ्तार हो गए। मेरी मां ने अपने वालिद से कहा मैं अब उनको संभाल नहीं सकती। इसने मुझे अपने वालिद के साथ रहने के लिए भेजा। मैं अपनी सौतेली मां के साथ परेशानी में पड़ गया। कहा कि वो नामुमकिन है, वो घर में नहीं रह सकता। मेरे वालिद साहिब भी एक होटल के मालिक थे। इसने मुझे अपने होटल में मुंतकिल किया। मैं बहुत घुल मिल गया था। मैं गिरफ्तार हो गया। मुझे 7 मरतबा गिरफ्तार किया गया है। मैं एक मौके पर 1 हफ्ता जेल में था, इससे पहले कि मैंने उन्हें अपना असली नाम बताया। मैंने सोचा कि मैं हवेली में घर वापस आने के बजाय नाउम्र हाल में रहना पसंद करूंगा। क्या ये पागल नहीं है? मैं कितना नाखुश था, बिल्कुल काबू से बाहर। आखिर में मेरे वालिद ने कहा मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या करना है। सब ने सोचा, डोग, क्या आप अपने वालिद के लिए काम नहीं करना चाहते? तालीम हासिल करें, कारोबार संभाल लें, आपके पास मौजूद तमाम पैसे को देखो, इन तमाम चीजों को देखें जो आपके पास होंगी। मैंने कहा हाँ, और मैं इसकी तरह हर रात सोने के लिए खुद पीऊंगा। ये क्या मुनाफा है? वो खुश नहीं है। तो मैंने कहा पापा मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं। मैं अभी अपने वालिद के दफ्तर से बाहर निकला था। मैं हाईवे पर आ गया, इंटरस्टेट 95। मैं हिचकियां लेने लगा। मेरी उम्र 16 साल है। मैं बॉस्टन चला गया। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जाली बनाया था। इसने कहा अगर आपको तजस्सुस है, मैं 1957 में पैदा हुआ हूं। मेरी मां एक फनकार है। मैंने साथ लिया, मैंने इसे 2 बना दिया और मैंने इसे एक जाली आईडी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, एक हकीकी जिसमें कहा गया था कि मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ा हूं, लिहाजा मैं ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के काबिल था और मैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी हासिल करने के काबिल था। मैं बॉस्टन में था और मैं घरों में घुसकर चोरी कर रहा था, टेलीविजन चोरी कर रहा था, कारें चोरी कर रहा था और रात को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। बिजनेस इंटेलिजेंस नामी कंपनी में काम किया। अब मैंने इस जगह से कभी चोरी नहीं की जिसकी मैं हिफाजत करता था, क्योंकि अब जानते हैं उन्होंने मुझे अदायगी की और मैंने अपनी चोरी दिन के वक्त की थी, क्योंकि अगर आप दिन के वक्त टेलीविजन के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि आप हरकत कर रहे हैं। तो इस वक्त के दौरान मेरे वालिद ने परवाज की। ठीक है, मैं खुद से आगे बढ़ रहा हूं तो कुछ हुआ। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जेरी था। वो सिक्योरिटी गार्ड था। इसे मेरे दिन की नौकरी चोरी के बारे में पता चला। मैंने कहा क्या आप मुझे अंदर जाने देंगे? इसने कहा वो बहुत रूहानी थे, वो इन मशरकी मज़ाहिब में शामिल है। वो कहता है नहीं यार, मुझे आपको अंदर नहीं लाना है, आपका कर्मा आपको हासिल करने वाला है। मैंने कहा क्या मतलब करम? इसने कहा तुम जो भी करो वापस आ जाओ। मैंने कहा कोई खुदा नहीं है। मैंने कहा मैंने वो टीवी सीट चरा लिया और मैंने इससे जान छड़ाई। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। इसने कहा अब देखेंगे। और हमारी इस बातचीत के चंद दिन बाद मैं बॉस्टन में अपने अपार्टमेंट में उठा। मेरा दरवाजा खुला हुआ था और मैंने देखा और मेरा टीवी गायब था और मेरा रेडियो, और मैं पागल था। तुम जानते हो मैंने क्या किया? मैंने पुलिस को बुलाया और मैंने कहा यह शहर किस तरफ आ रहा है। मैंने कहा तुम लोग वहां से निकलो और उन्हें तलाश करो। और मैंने देखना शुरू कर दिया और मैंने जो कुछ किया वो उल्टा लग रहा था। मैं जाकर कुछ चोरी करूंगा और मेरे दोस्त चूर थे, फिर वो मुझसे चोरी कर लेंगे। मैं शराब पीते हुए ज्यादा मिकदार में कुछ चोरी करता और मैं इसे छुपाता और मैं जाग कर कहता नहीं, मैं जानता हूं कि मैंने रकम छुपा रखी थी। मैंने इसे कहां छुपाया? मुझे याद है कि मैं अपने दोस्त जेसमल्स के साथ ब्रुकलिन में चोरी कर रहा था और पुलिस को पता चला और पुलिस ने हमारा पीछा किया।
और गोली मार दी। और मैं आपको ये तमाम मुख्तलिफ कहानियां सुना सकता हूं, लेकिन सब कुछ गलत हो रहा था। मैंने बॉस्टन में एक कार चराई, न्यूयॉर्क सिटी चला गया, फ्लैट टायर मिला। ट्रंक में नहीं जा सकता था, गाड़ी चोरी कर सकता था, लेकिन मैं टायर बदलने के लिए ट्रंक में नहीं जा सकता था। बारिश में न्यूयॉर्क शहर से वापस बॉस्टन जाना पड़ा, दुखी। और मैं सोचने लगा शायद कोई खुदा हो। लेकिन अब जानते हैं कि मुझे किस चीज ने कायल किया। ये एक छोटी सी बात थी। मैंने सिर्फ कोल्ड टर्की चोरी करना नहीं छोड़ा। मैंने टालने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कहा यह कर्मा चीज, इसमें कुछ हो सकता है। मैं एक स्टीरियो चोरी करूंगा और मैं हड़बड़ाता हुआ अपने घर वापस जाऊंगा और इसे लगाऊंगा। ये टूटा हुआ है, एक टूटा हुआ स्टीरियो। इस लिए मैं किसी के घर गया और मैंने क्रिस्टी के इंस्टेंट पेनकेक मिक्स का एक बॉक्स चरा लिया जो बिल्कुल नया है। मैंने ऐसा किया क्योंकि इस वक्त में सेहत के बारे में बहुत होश में था। मैं एक हिप्पी था, मुझे सिर्फ पूरी गंदम का पेनकेक मिक्स चाहिए। मैं शराब पी रहा हूं, तंबाकू नोशी कर रहा हूं, मुनशियात का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ गंदम का पेनकेक मिक्स कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी देखभाल करने जा रहा हूं। तो मैंने पेनकेक मिक्स का ये डब्बा चरा लिया। बॉक्स के ऊपरी हिस्से पर, यह इससे पहले है कि उनके पास बारकोड था, इस पर की मेहर लगी थी। मैं इसी दिन अपनी जगह वापस आ गया। कुछ लोग बिन बुलाए मेरी जगह आए। मेरे पास तांग इंस्टेंट ब्रेकफास्ट ड्रिंक का बिल्कुल नया जार था। उन्होंने बर्तन लिया, इसे खोला, उन्होंने इसका हर एक हिस्सा पिया और वहां खाली जार के पास एक ढक्कन था। और उसने कहा, और मैंने पेनकेक मिक्स को देखा और मैंने कहा, जुर्म अदा नहीं करता, कोई खुदा होना चाहिए। लेकिन मुझे ईसाइयत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं ईसाइयों को देखने में बहुत ज्यादा वक्त गुजारूंगा। और मैंने कहा ये सब मुनाफिक हैं। मैं काफी मजहबी खिदमात अंजाम दे चुका था और कैथोलिक स्कूल गया। और मुझे याद है कि पादरी वहां खड़ा होकर कम्युनियन कर रहा था जब वो सिगरेट नोशी और शराब पी रहा था। मैं जा रहा हूं, इसमें क्या है? और मैंने खबर आन कर दी और कहा, आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मार रहे हैं। मैंने कहा वो दोनों ईसाई होने का दावा करते हैं। मैंने सोचा कि यसू ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो, वो एक दूसरे को उड़ा रहे हैं। ये सब मुनाफिक हैं। मैंने वो गलती की जो बहुत से लोग करते हैं। जब मैंने जानना चाहा कि ईसाई क्या होता है तो मैंने ईसाइयों की तरफ देखा। अगर आप ईसाई बनना चाहते हैं तो ईसाइयों की तरफ मत देखें। एक ईसाई ईसाइयों का पैरोकार नहीं है, एक ईसाई मसीह का पैरोकार है। लोग आपको मायूस कर देंगे, यसू आपको मायूस नहीं होने देगा। अपनी निगाहें मसीह पर रखें। अगर आप लोगों को देखने जा रहे हैं तो शैतान आपको देखने के लिए किसी को ले जाएगा जो आपको मायूस कर देगा। यसू आपको मायूस नहीं करेगा। तो मैंने कहा ये सब मुनाफिक हैं। तो मैं था, अब जानते हैं ये बैटल्स के दौर की बात है। और इस तरह में मशरकी मजाहिब में दाखिल होने लगा और मैं मुराकबा और बुद्ध मत में आ गया और मैं मावराई मुराकबा और योगा में शामिल हो गया। ये वो जगह है जहां आप अपने सर पर खड़े होकर खुदा को तलाश करते हैं। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरे बाल गिर पड़े। तब मैं, आपको मालूम है, मैं हिंदू मजहब में थोड़ा सा था और मैं यहूदियत के बारे में कुछ जानता था और मैंने कबाला और कुछ सूफियाना उलूम में थोड़ा सा हिस्सा लिया। और मैंने एक तरह से इन तमाम मुख्तलिफ मजाहिब का एक खोजबाज बनाया। मैं सच की तलाश में था, यहां तक कि मैं जनूबी कैलिफोर्निया भी गया। मैं पूरे मुल्क में घूम रहा था। मैंने फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और वापस जाने का सफर किया। मैं सब पर चला गया। मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में हरे कृष्णा के मंदिर में गया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर आप उनकी खिदमत में जाएं तो मुफ्त खाना खिलाएंगे। तुम जानते हो, मैं ईसाई मिशन पर गया था। इस वक्त हम सड़कों पर रहते थे। मुझे अपने वालिद से मदद मांगने में बहुत फख्र था। और ईसाई मिशन ने कहा, अगर आप अंदर आते हैं तो वो दरवाजे बंद कर देंगे और ये तमाम शराबी और लावारिस और आदि लोग अंदर आ जाएंगे और कहने लगे, हम आपको मुफ्त खाना देंगे, लेकिन आपको तबलीग सुननी है, फिर हम आपको खिलाएंगे। काफी मुंसिफाना। तो हम वहां बैठेंगे और मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे तमाम दोस्त, हम सब बहुत नागवार थे और ये ईसाई बहुत अच्छे थे। वो गवाहियां बांट रहे होंगे और वो एक छोटा सा वाइज करेंगे और वो एप्पल पाई के साथ वाकई अच्छा खाना निकालेंगे। और मेरा मतलब है ये बहुत अच्छा था। हम कहेंगे, ओ हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। हरे कृष्णा ने कहा, अगर आप हमारी खिदमत में आएं तो हम आपको मुफ्त खाना पेश करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने दोस्त जे के साथ चला गया। और खिदमत में ऊपर और नीचे कूदना शामिल है। बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है। ऊपर नीचे छलांग लगाते हुए और कहते, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम रामा राम हरे हरे। मैं इससे कभी नहीं भूला क्योंकि उन्होंने ये काम 2 घंटे बार किया। और मैंने हॉलीवुड में उन दोस्तों के साथ काफी वक्त गुजारा जो सम्मोहन और चीजों में थे। मैंने सोचा ये सम्मोहन है। ये तकरार आपको सम्मोहन की हालत में डाल देती है। और मैंने अपने दोस्त जैसे कहा, मैंने कहा मैं बाथरूम जा रहा हूं।
میں نے کہا کھانا کب آئے گا بتاؤ. میں نے کہا میں باہر نکلا اور میں باتھ روم میں ہوں اور انہوں نے اپنے ڈرم چلائے اور باس اور وہ سب ہیں ہرے کرشنا ہرے راما. میں وہاں جاتا ہوں اور اپنے دوست جے کو چیک کرتا ہوں اور وہ اس میں داخل ہو رہا ہے. انہوں نے ہمیں اس سب کے لیے دہی اور کشمش دی. لیکن میں خدا کی تلاش میں تھا. میں ہر چیز کی کوشش کر رہا تھا. میں نے سوچا کوئی خدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میں بوسٹن واپس چلا گیا اور میرے والد مجھے دیکھنے کے لیے فلوریڈا سے اڑ گئے اور اس نے مجھ سے منت کی. اس نے کہا ڈوگ آپ کو اسکول واپس جانا ہے. اس نے کہا تم جانتے ہو فالکن بیمار ہے. وہ بمشکل کالج سے گزر رہا ہے کیونکہ لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں اور وہ جدوجہد کر رہا ہے. اسے ہسپتال جا کر علاج کروانا پڑا. اور اس نے کہا تم صحت مند ہو. وہ کہتا ہے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی برباد نہ کرو. اس نے کہا مجھے ایک سکول ملا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں فوجی اسکول واپس نہیں جا رہا ہوں. کوئی لڑکیاں نہیں ہیں. اور اس نے کہا نہیں لڑکیاں ہیں. اس نے کہا مجھے ایک سکول ملا. یہ ایک کشتی پر ہے. یہ دراصل ایک ساتھ دو کشتیاں ہیں. وہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں اور ان کی لڑکیاں ہیں. آپ سکوبا ڈائیو کر سکتے ہیں. آپ واٹر سکی کر سکتے ہیں. آپ سپیئر فشنگ جا سکتے ہیں. آپ کچھ ایڈونچر کر سکتے ہیں. دنیا دیکھیں. اور وہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے. اس نے کہا تم جانتے ہو میرے پاس یہاں ایک بریف کیس ہے. اس میں $1 ملین ہیں. میں $1 ملین کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. اور اس نے کہا آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تعلیم حاصل کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے والد نے مجھے پکڑ لیا. میں گیا. مجھے نہیں معلوم کہ اسے پاسپورٹ کیسے ملا. آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس کافی رقم ہے تو آپ ایک دن میں پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. دراصل مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو 1 منٹ پہلے ایک تصویر دکھائی تھی. یہ میری پاسپورٹ کی تصویر تھی جب میں 16 سال کا تھا. میرے والد کو یہ مل گیا. اس نے مجھے کشتی میں شامل ہونے کے لیے میلان اٹلی پہنچایا. سکول پہلے ہی سیشن میں تھا. میں دیر سے شامل ہوا اور اسے فلم سکول بیرون مک کہا جاتا تھا. اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں دوستوں کچھ لوگوں کو کہانی پر شک ہے. یہ دراصل سکول کی تصویر ہے. 2 کشتیاں بادبانی کشتیاں. وہ ایک ساتھ بحری جہاز روانہ ہوئے. وہ دنیا بھر میں گئے. سکول کشتی پر تھا اور میرے والد نے انہیں میرا پاسپورٹ دے دیا. اس نے کہا بعد میں ملوں گا. اور پھر مجھے پتا چلا کہ مجھے ایک طرح سے دھوکا دیا گیا ہے. یہ سیاست دانوں اور کروڑ پتیوں کے بچوں کے لیے ایک خاص اسکول تھا جو منشیات افرقوں میں گھل مل گئے تھے تاکہ انہیں اس اثر سے باہر نکالا جا سکے. اور پھر انہوں نے الحاد کا درس دیا. انہوں نے ڈارون پر فلمیں دکھائیں. کہنے لگے کوئی خدا نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی خود بنانا ہے. یہ آپ کی واحد زندگی ہے. آپ کو کامیاب ہونا ہے. اور اب میں مراقبہ کر رہا ہوں. اب میں شکتی میں ہوں DNA کی روحانی سائنس. میں اندر تھا اور میں اپنے کمرے میں مراقبہ کر رہا ہوں. میں نے ایک دلچسپ تجربہ سیکھا. ہم نے بحیرہ روم کے گرد سفر کیا اور آپ جانتے ہیں مجھے کچھ تجربات ہوئے اور آپ کو کتاب پڑھنی ہوگی. یہ سب بتانے کا وقت نہیں ہے. لیکن میں نے ایک بار دیکھا کہ ہم شمالی افریقہ تیونس افریقہ سے پورٹ آف ماون اسپین جا رہے تھے. اور بحیرہ روم ایک نقشے پر چھوٹا لگتا ہے لیکن آپ وہاں بیچ میں نکل جاتے ہیں اور یہ ایک بڑا سمندر ہے. آپ کو کئی دن زمین نظر نہیں آتی. اور ہم موسم سرما کے طوفان میں آ گئے. یہ کرسمس کے دوران تھا. اور پانی کشتی کے کنارے پر آنے لگا. اور کشتی کے نیچے سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہل گئی ہو اور ہوا طوفان کی طرح چل رہی تھی. تو بادبان اس قدر زور سے ٹوٹ رہا تھا کہ تالیاں بجنے کی طرح گونج رہی تھیں. اور آپ 10 فٹ دور کسی شخص پر چیخ سکتے ہیں اور وہ آپ کو سن نہیں سکتا ہے. اور کشتی کی ناک لہروں سے گزر رہی تھی اور چیزیں پانی سے دھو رہی تھیں. اور پانی ٹھنڈا تھا. اور کپتان نے ہم سے کہا اگر آپ جہاز پر گر گئے تو ہم اس طوفان میں پلٹ نہیں سکتے. الٹ جائیں گے. ہم اس جگہ کو نشان زد کریں گے جہاں ہم نے آپ کو کھویا تھا. اس سے آپ کے اعصاب ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہر کوئی سمندر میں مبتلا تھا. اور کپتان سمندری بیماری میں مبتلا تھا. اور مین سیل پھٹ گیا. آپ کے خیال میں ملحد کیا کرتے ہیں جب وہ سوچتے ہیں کہ وہ مرنے والے ہیں. ہرے کرشنا کوئی نہیں جا رہا تھا. لوگ نماز پڑھ رہے تھے. وہ خدا سے بات کر رہے ہیں. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا ہے کیونکہ وہ خدا سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ انہیں ایک اور موقع دیتا ہے تو وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. اور میں دعا کر رہا تھا اور وعدے کر رہا تھا. اب کیا یہ خدا کی خدمت کرنے کی صحیح وجہ ہے؟ اب جانتے ہیں یہ ایک اچھا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. کچھ لوگ خوف سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ بہترین وجہ نہیں ہے. خدا کی خدمت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ خدا کی خدمت کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کو سزا دے گا تو آپ جنت میں اس کی خدمت نہیں کرنا چاہیں گے. آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اب اس سے پیار کرتے ہیں. تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو. یسوع نے
कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे अहकाम पर अमल करो। खैर हम तूफान से बच गए और मैंने कप्तान को राजी कर लिया कि मुझे घर जाने दें। मैं एक हकीकी परेशानी पैदा करने वाला था, लेकिन इसने कहा डोग हमें आपसे ताउन करने के लिए क्या करने की जरूरत है। मैंने कहा अब मुझे क्रिसमस की छठी के लिए घर जाने दें और मैं उसूलों की पाबंदी करूंगा। मैं नहीं जा रहा था, मैं अपनी चीजें डेक पर नहीं कर रहा था। मिलिट्री स्कूल अपने बदतमीजी की वो आपको मारते हैं, वो इस स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते थे और इसलिए मैंने कहा अब मुझे क्रिसमस के लिए घर जाने दें। वो वही फोन मिला और उसने मेरे वालिद को फोन किया वक्त की तब्दीली की वजह से उन्हें जगाया। तो जनाब बैचलर आपको परेशान करने के लिए माजरत, हमें अच्छी खबर मिली है। डोग ने काबिल जिक्र पेशरफ्त दिखाई है। हम जा रहे हैं, हमें लगता है कि वो क्रिसमस पर घर जाने के लिए तैयार है। ओ मेरे वालिद पुरजोश थे। जैसे ही मैं मैड्रिड स्पेन में हवाई जहाज पर चढ़ा मैंने कहा मैं बियर लूंगा, मैं सिगरेट पैक करना चाहता हूं। इस वक्त अब हवाई जहाज में सिगरेट नोशी कर सकते थे। मेरे दोस्त ने कहा वो अब मुसीबत में है। मैंने कहा अब लोग मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और उन्होंने कभी नहीं किया। जैसे ही मैं फ्लोरिडा पहुंचा मैंने हुच हाइकिंग शुरू कर दी। मैं खानदान के लिए सबसे पहले छुट्टियों पर गया कनाडा में स्नो स्कीइंग, और फिर मैं वापस आया और जब स्कूल वापस जाने का वक्त आया तो मैं फ्रीवे पर आ गया। मैंने अपना सारा सामान अपने भाई को बेच दिया। वो नहीं जानता था कि मैं भागने जा रहा हूं। मैंने सिर्फ कहा मुझे कुछ इजाफी तब्दीली की जरूरत है। मैं सड़क पर आ गया। मैंने फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक सफर शुरू किया। मैं पहाड़ों में रहना चाहता था और अमरीकी हिंदुस्तानी मजाहिब के जरिए खुदा को तलाश करना चाहता था, और आधे रास्ते में मैं फंस गया। ओक्लाहोमा में मौसम सरमा का वक्त है और मैं जिम गया था। मैं खुद ही हूं। मैं एक दिन पहले एक बार में पी रहा था। मैंने अपने सारे पैसे पूल हाल में खो दिए। पूल खेलते हुए गुंगा शर्त लगाते हुए नशे में मैं टूट गया हूं। मैं बीमार हूं, मुझे भूख लगी है, और फिर मैं सड़क पर खड़ा हूं और मेरे पास फ्लोरिडा के कपड़े हैं और ये सिफर से नीचे है और मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। बहुत जिद्दी और मदद मांगने में फख्र महसूस करते हैं, और जब भी कोई ट्रक गुजरता था 3 सेकंड बाद में मोड़ जाता था क्योंकि ट्रक की हुआ अब से टकराती थी। और घंटों के बाद मैं बेचैन हो गया और मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदा, मैं जानता हूं कि खुदा है। मुझे अब यकीन हो गया था कि कर्मा की वजह से खुदा मौजूद है। अब जानते हैं यसु कर्मा सिखाता है। वो कहता है दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे। जो आता है उधर ही आता है। दोस्त, मैं तुम्हें बता सकता हूं, रहम करने वालों से बढ़कर रहम करेंगे। मैंने कहा मुझे यकीन है कि खुदा है। मैंने कहा रब, मैंने इससे 4 चीजें मांगी। मैंने कहा क्या अब बरा करम मेरी मदद करेंगे कि मैं जहां जा रहा हूं वहां तक सवारी ले जाऊं। मैंने कहा मैं मुंजमद हूं। मैंने कहा ए रब, क्या आप मुझे मुआफ कर देंगे। मैं एक बोसीदा शख्स रहा हूं, मैं जानता हूं। मेरा मतलब है मैं वाकई में बहुत बुरा आदमी था। और मैंने कहा खुदावंद मुझे कुछ रकम हासिल करने में मदद करें। मैं टूट गया था। खाना लाने में मेरी मदद करो। और मेरा अंदाजा है कि 5वीं चीज जिसके लिए मैंने दुआ की थी वो है किसी नॉर्मल के साथ सवारी करना, क्योंकि मुझे पागल लोग उठाते रहते हैं। मुझे ऐसे लोगों ने उठाया जो वो पी रहे थे और वो तेज हुआ वाली सड़क पर थे। कहने लगे ये देखो, मैं लाइट बंद करके गाड़ी चला सकता हूं। वो अपनी लाइट्स बंद कर देते हैं। मुझे कॉलेज के 2 तालिब इल्मों ने उठाया जो बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे थे। गाड़ी धुएं से भरी हुई थी। वो दरमियानी रास्ते से आने वाली ट्रैफिक में भागे। मैंने कहा वो ये मेरा स्टॉप है, मुझे बाहर जाने दो। तो मैंने कहा रब मुझे किसी आम आदमी के साथ सवारी दें। मैं घंटों तक वहां रहा। जैसे ही मैंने दुआ खत्म की, मैं नहीं जानता था कि दुआ कैसे की जाए। मैंने यसु के नाम पर नहीं कहा। मैंने कहा कि रब मेरी मदद करें। एक गाड़ी रुकी, सफेद रंग की वैन। मुझे उठाओ। ये शख्स मुझे ओक्लाहोमा से पाम स्प्रिंग्स कैलिफोर्निया में मेरी मंजिल तक ले गया। जब इसने मुझे छोड़ा तो इसने मुझे $40 दिए। इसने मुझे सारे रास्ते खिलाया। मैं भूखा था। जब भी इसने मुझे खिलाया मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। और जिस चीज के लिए मैंने दुआ नहीं की वो ये है कि इसने मुझे ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया तक पूरे रास्ते में तबलीग की। वो नए सिरे से पैदा होने वाला ईसाई था और वो रास्ते में सबको तबलीग कर रहा था, और मुझे इसकी बात सुनना गाड़ी से बाहर कूदना पड़ा। और मैंने सोचा बाइबल एक परियों की कहानी है, ईसाई मुनाफिक हैं। चुनांचे इस ने मुझे छोड़ दिया और मैं पहाड़ों पर चला गया। ये दरअसल मेरे भाई की तस्वीर है, बरसों बाद ली गई। मैं अब फितरत के जरिए खुदा को तलाश करना चाहता था। मैं पहाड़ों में चला गया और मैं एक गार में चला गया, और मैं उन वीरान पहाड़ों में रहता था, वापस सहराई पहाड़ों में।
कैरन मेरे साथ एक दो बार वहां गई है, पाम स्प्रिंग से ऊपर। अब दूसरी तरफ से नीचे जाएं, वहां एक नखलिस्तान है। इसके बारे में तकरीबन कोई नहीं जानता। के दौरान में इस वक्त अपने 25 साला बेटे के साथ वापस गया और बमुश्किल इसे बनाया। इस तक पहुंचना मुश्किल है। वहां 11,000 फुट का पहाड़, इसे माउंट सान जीकुंटू कहते हैं। और मैं 1.5 साल तक एक गार में रहा। मैंने अपने तमाम कपड़े उतार दिए क्योंकि अब मैं कुदरत के जरिए खुदा को तलाश करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये 70 की दहाई थी। फूल बच्चे ये दीवाना था। मैं जानता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैं शहर में हफ्ते में एक बार पाम स्प्रिंग्स तक पैदल सफर करूंगा। मैं बांसुरी बजाता था और मैं हैंडल करता था और मैं बाजार के पीछे कचरे के डब्बे से खाना निकालूंगा। मेरे वालिद को मेरे दादा से पता चला मैं एक डम्पस्टर गौताखोर था और उसने उनका दिल तोड़ दिया। इसने तमाम अफसुर्दगी के दौरान काम किया ताकि इसके बच्चे कभी गरीब ना हो। और अब इसे पता चला कि इसका बेटा खाने के लिए कचरा खोद रहा है। अब जानते हैं, अब को एक आसमानी बाप मिला है जिसने अपने बेटे यसू को दिया ताकि आप अमीर बन सके। और हम शैतान के कूड़े के पास जाते हैं और उससे इसका दिल टूट जाता है। ठीक है, यहां एक मौजिज़ा है। मैं इस गार में पहाड़ों में रह रहा था। ये मेरे गार की तस्वीर है। मेरे पास अजनबी नाम की एक बली थी। मैं जानता हूं कि तस्वीर थोड़ी खुरदरी है। ये रही मेरी बली। मेरे गार के बाहर एक तालाब था जिसमें आबशार खूबसूरत जगह थी। किसी ने गार में बाइबल छोड़ी थी। मैंने सोचा कि मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूं ताकि मैं ईसाइयों के साथ बहस कर सकूं क्योंकि मैं उन तब्दील शदा हफियों से मिलता रहता हूं और हम उन्हें इस वक्त जैसे फरीकिस कहते हैं। उनके पास इस वक्त यसू की तहरीक थी और मैं उनके साथ बहस करूंगा और वो तकदीस के बारे में बात करेंगे और खून में नहलाएंगे। और मैंने सोचा कि ये लोग पागल हैं, लेकिन मैं बाइबल को नहीं जानता था। लिहाजा मैंने सोचा ठीक है, मुझे कम अज कम में एक अच्छा कारी था, मुझे बाइबल पढ़नी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये एक खतरनाक कारोबार है। मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। मैं वहां खुरूज में फंस गया और मैंने छलांग लगा दी और मैंने मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन को पढ़ा। मैं हर रोज केले की रोटी खाता था क्योंकि मुझे बाजार से पुराने केले मुफ्त मिल जाते थे। बाजार के लोग मुझे जानते थे और मैं केले की रोटी खाता था। मेरे पास एक डिच तंदूर था जिसे मैंने आग पर रखा था और फिर मैं जिंदगी की रोटी खाता था और मैंने बाइबल पढ़ी थी। और रास्ते में कहीं कुछ हुआ था। मैंने सब कुछ आजमाया। मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब को देखा। मुझे कोई तासुब नहीं था। मेरा मतलब है मैं कुछ भी हो सकता था। मुझे परवाह नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। और जैसा कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये सच नहीं हो सकता। नूह और कुश्ती और आदम और हवा। मगर अंदर से आवाज आई, ये सच है, ये सच है। मैंने कहा, लेकिन यसू वाकई जिंदा नहीं था। वो एक लेजेंड है। मैं नीचे लाइब्रेरी में चला गया। मैंने कहा, नहीं, वो जिंदा था। हम तारीख को उनकी पैदाइश से लेकर आते हैं। और आखिर में मैंने कहा, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 में से एक इंतखाब है। कहा, तो वो झूठा है, वो पागल है, वो रब है। और मैं जानता था कि वो झूठा नहीं है क्योंकि इसने जो कुछ कहा है। अब जानते हैं, जैसा कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, पहली बार मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, ये कहता है दूसरा गाल मोड़ दें। मैंने कहा, मैंने वो जुमला इस्तेमाल किया है। मैं नहीं जानता था कि यसू ने ये कहा है। दूसरा मील जाना, दीवार पर लिखा हुआ, अब के दांतों की जल्द से। ये सब बातें मैं सारी जिंदगी सुनता आया हूं। मैंने कहा, यह बाइबल बहुत अच्छी किताब है, यहां बहुत हिकमत मिली। यसू झूठ बोल सकता था और अपने आप को बचा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि वो पागल नहीं था। जो लोग यसू की बातें सुनकर आए थे उन्होंने कहा कि इस आदमी की तरह कभी किसी ने बात नहीं की। हम ये भी नहीं जानते कि वो कैसा लगता था। इसने जो कहा, इसने दुनिया बदल दी है। उन्होंने कहा कि मेरी तालीमात पूरी दुनिया में जा रही है और इस वक्त दुनिया का बेशतर हिस्सा ईसाइयत का दावा करता है। मैंने कहा, मैंने बाकी सब कुछ आजमा लिया है। तो वहां पहाड़ों में इस वीरान गार में मैं घुटने टेक कर बैठ गया। मैंने कहा, रब, मैं एक गंदा हूं। मैं इस शैतानी की तरह हूं। मैं पहाड़ों में बरहना होकर भाग रहा हूं, कचरे के ढेर से खा रहा हूं, नापाक जिंदगी गुजार रहा हूं। और मैंने कहा, क्या आप मुझे मुआफ कर देंगे? क्या तुम मुझे जीने का कोई मकसद दोगे? और तुम जानते हो, मैंने वो दुआ मांगी थी। मैंने अपने दिल में सुकून महसूस किया और मैं एक दिन में नहीं बदला, बल्कि अल्लाह ने मुझे बदलना शुरू कर दिया और मुजिज़े होने लगे। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक मुख्तसर कहानी सुनाता हूं। मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं और मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट पर जाने वाला हूं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये कर सकता हूं। वो शख्स यसू के पास इस तरह आया जैसे वो था और खादोनद ने कहा, इसने बदरूहों को निकाला और उसने कहा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं खुदाबंद। यसू, नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप दूसरे लोगों को बताएं कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है
اور وہ گیا اور اس نے سب کو بتایا کہ یسوع نے اس کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ اور جب مسیح واپس آیا تو وہاں ایک بہت بڑا ہجوم اس بدرو سے تبدیل ہوا جو ابلیس سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ آدمی جس کے بارے میں ہر کوئی سوچتا تھا کہ وہ بائبل میں سب سے زیادہ نا امید آدمی ہے، خدا نے اسے استعمال کیا۔ میں وہاں غار میں ہوں اور یسوع کو قبول کرنے کے بعد میں نے کہا خداوند یہ اچھی خبر ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے سب کو یسوع کے بارے میں بتانا شروع کیا اور میں نے کہا رب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب چاہتے ہیں کہ میں یہ کل وقتی کام کروں، لیکن میں ایک پرہیزگار ہوں، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں اور میں اکیلے دنوں تک پہاڑوں پر جا سکتا ہوں اور میں خوش ہوں۔ اور میں نے کہا اب چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اور لوگوں سے آپ کے بارے میں بات کروں تو میں یہ کروں گا لارڈ، اگر آپ مجھ سے ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو مجھے دکھانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا خداوند میں نہیں جانتا کہ میں یہ کیسے کروں گا، میں خود پہاڑوں پر ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے گواہ بنوں تو مجھے ایک نشان کی ضرورت ہے۔ میں اگلے چند دنوں میں شہر جاؤں گا۔ میں اپنی ماں کو فون کرتا ہوں، بیورلی ہلز میں جمع ہوں۔ مجھے چیک کیا گیا اور ماں میں زندہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہتی ہے ڈوب کیا۔ اب اگلے چند دنوں میں گھر آنے والے ہیں۔ میں نے کہا گھر سے کیا مراد ہے؟ غار میں اوپر؟ ہاں، میں غار میں رہوں گا۔ وہ کہتی ہے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ماں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں ہیلی کاپٹر میں آ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہاں، میں NBC نیوز بل ایپل گیٹ کے ایک لڑکے کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ اور میں نے کہا میرے بیٹے کا باپ کروڑ پتی ہے اور وہ پہاڑوں میں ایک غار میں رہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم انسانی دلچسپی کی کہانی ہوگی، کیا وہ ہمیں اسے ٹیپ کرنے دے گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اگلی بار جب وہ کال کرے گا تو پوچھوں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میری ماں لاس اینجلس سے اڑ گئی۔ وہ ایک ہیلی کاپٹر کرائے پر لیتے ہیں، وہ میرا انٹرویو کرنے کے لیے میرے غار تک اڑتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اور اب میرے پاس ایک موقع ہے کہ میں مختصرا اپنی گواہی بیان کروں۔ یہ میرے غار میں ان کی تصویر ہے۔ ان کا ایک فلمی عملہ تھا جس نے یہ تصویر کھینچی۔ میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ وہ تصویر کسی دن کتاب کا سرورق بنے گی، اب وہ تصویریں جو فوٹوگرافر نے اس دن لی تھیں۔ اور جب وہ ہیلی کاپٹر میں اڑ گئے مجھے نیچے شہر جانا پڑا اور پوچھنا پڑا کہ کیا میں ہوٹل کی لابی میں جا سکتا ہوں۔ اور کہنے لگے کس لیے؟ میں نے کہا میں خبروں پر جا رہا ہوں۔ میں اس دن 3 بار خبروں، قومی خبروں پر اپنی گواہی دے رہا تھا۔ میں 3 بار جانتا ہوں کیونکہ جیل میں ایک دوست نے کہا کہ اس نے اسے 3 بار دیکھا ہے۔ تو اب اور صرف اس صورت میں جب آپ سوچ رہے ہو میں ایک پادری ہوں، مجھے پادری کی تنخواہ ملتی ہے، لوگ میرے والد کے بارے میں سنتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور مجھ سے سرمایہ کاری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میرے والد نے اپنی رقم کا بڑا حصہ ایک فاؤنڈیشن، ایک اچھی فاؤنڈیشن، بیچلر فاؤنڈیشن پر چھوڑ دیا۔ کیرن اور میں ایک باقاعدہ گھر میں رہتے ہیں۔ ہم عام لوگ ہیں لیکن میں خوش ہوں، میں گھومتا ہوں، میں خوشخبری کا اشتراک کرتا ہوں۔ ایک اور خیال، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ دعا کروں، میرے بھائی کی موت سے ٹھیک پہلے فالکن وہ میامی بیچ میں گولف کارٹس میں گھومتا تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، وہ کالج گیا اور وہ گھر رہا اور اس نے والد کے لیے کام کیا۔ پانی پر اس کا نیا گھر تھا، گھر کے پچھواڑے میں کشتیاں اور تمام کھلونے تھے، لیکن وہ بیمار تھا اور میں ایک دن اس کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ رک جائے گا اور کھانسی فٹ ہو جائے گی، پھر ہم تھوڑا اور چلیں گے۔ اور اس نے کہا دوگ تم خوش قسمت ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اگر میرے پاس تمہارے پھیپھڑے ہوں تو میں سب کچھ دے دوں گا۔ اس نے کہا زندگی منصفانہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بہت ہوشیار ہوں لیکن میں بیمار ہوں۔ اس نے کہا اور تم بہت صحت مند ہو لیکن تم بے وقوف ہو۔ اس نے کہا میں سب کچھ دے دوں گا اگر مجھے تمہارے پھیپھڑے مل جائیں اور اس زندگی میں تھوڑی دیر زندہ رہوں۔ اور میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو یسوع اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں اپنے بھائی کے مرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور میں نے کہا فالکن کیا میں اب کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ وہ مجھے میرے مذہب کی وجہ سے چھیڑتا تھا، لیکن جب وہ مر رہا تھا تو وہ میرے مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا تھا۔ اس نے کہا ہاں، اور اس نے میرا ہاتھ دبایا اور میں نے اس سے کہا کہ وہ یسوع کو اپنے دل میں قبول کرے۔ کیا فائدہ اگر تم ساری دنیا حاصل کر لو اور اپنے جانی دوست کھو دو؟ یہ پیسہ نہیں ہے، یہ شہرت نہیں ہے، یہ اچھی شکل نہیں ہے۔ یسوع کے پاس آپ میں سے ہر ایک کے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے، لیکن آپ کو اس کے پاس اسی طرح آنا ہے جیسے آپ ہیں، اور آپ اب یہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج ہماری خدمت کے اس حصے کو بند کر دیں، اب جانتے ہیں یسوع واپس آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ تیار رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ اب یہاں ہوں اور آپ نے اپنی زندگی میں یسوع کو پہلی جگہ نہیں دی ہے۔ آپ میں سے کچھ دیکھ رہے ہیں، اب جانتے ہیں، اب دنیا کی چیزوں سے مشغول ہیں۔ یہ زندگی مختصر ہے دوست، یہ تیزی سے جاتا ہے۔
और मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये कहना चाहेंगे इसकी मौजूदगी में खड़े होकर ऐसा करें क्योंकि आपका मतलब है अगर आपने पहले यसू को कबूल नहीं किया है, अगर आपने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उसके हवाले नहीं की है और आप अब ऐसा करना चाहते हैं, तो क्या आप खादी की हुजूरी मैं खड़े होकर कहने के लिए तैयार हैं? मैं इसकी आवाज सुन रहा हूं। मैं अब ये करना चाहता हूं। मैं अब को खड़ा देख रहा हूं। हाँ, खड़े रहो, डरो मत। यसू आपके लिए अवामी तौर पर मरा। आप अवामी तौर पर उसके पास आ सकते हैं। खुदा की हम्द करो, खुदा की हम्द करो। आमीन। और भी हैं, और भी हैं। मैं दुआ करने से पहले अगर आप अपना फैसला करना चाहते हैं, आमीन, कुछ घर में अब जहां कहीं भी हो नमाज पढ़ सकते हैं। कहो, रब मैं अभी तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। तुम जैसे हो वैसे ही आओ। वो शैतानी वो बिल्कुल इसी तरह आया जैसे वो था और यसू ने इसे आजाद कर दिया। वो आपको आजाद कर सकता है और आपको काम पर लगा सकता है। आसमानी बाप, हम बचाने के लिए आपकी मुजिजाना ताकत के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पहले अपनी बादशाही की तलाश में हमारी मदद करें। मैं दुआ करता हूं कि हम दुश्मनों के फरेब से परेशान ना हों। इन लोगों की जिंदगियों में जो भी जंजीरें हैं, जैसा कि आपने इस आदमी के लिए किया, जंजीर तोड़ दे, हमें आजाद कर हमारी बरहनगी को अपनी चादर से ढांप दे और हमें कोई काम करने को दें। यहां के लोगों को बरकत दें और उन मुलाकातों को बरकत दें। बाकी मानता हूं और अपनी रूह डालें। हम मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, आमीन। वैसे जो लोग खड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां पादरियों के साथ कहीं जाएंगे और उनके साथ दुआ करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अगले इकदामात क्या होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास एक कंसर्ट है जो अब होने वाला है। आप आमीन कहीं। कुछ गुलकार ये सामने आएगा।